Anita Desai, Fire on the Mountain. So let us start with this summary, and first I will read the paragraph and then I will explain you. So let us read. The Retired Life of Nanda Kaul. After reading the story of the novel Fire on the Mountain written by Anita Desai, we find that there are three parts. The first part is related to the life and thoughts of Nanda Kaul. In the second part, we read about the character of Raka. The third part is about Iladas. Nanda Kaul had come to live her retired life at Kargi Gnano in Kasoli to pass her remaining life as a hermit. She has passed her childhood and youth very comfortably and high spirits in Kashmir at the bank of Dal Lake in their own houses. They used to sail in the shikaras in the Dal Lake. They had a zoo in their house, having Himalayan bear with her father had caught when it was a cub. There was also a tiger, cats, dogs, monkeys, parrots. She had lived a comfortable life after her marriage because her husband used to love her deeply with great regard for her. Her husband was a vice chancellor living in a big bungalow with several servants. A large number of guests used to visit them. Nanda Kaul had a very busy schedule. She looked after her children and guests very carefully. She felt tired in the evening after doing all her duties. After her children had settled and her husband had died, she thought of retirement after completing all her duties. Then she asked herself, have I not done enough and had enough and want no more? I want nothing. Can I not be left without nothing? She was happy because she had enjoyed her life in full. So she did not wanted to do anything more. At least she retired to a lonely place, Kasoli, in order to get her mental peace in the midst of nature. She was very happy to be left alone by her own sons, which had already settled well in their life. सो ये नावल के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो नंदा की लाइफ के रिलेटेड है. सेकंड जो पार्ट है वो राका की अराइवल का है, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो इला का रेप के बारे में है, ठीक है. तो अब जो नंदा होती हैं वो अपनी रिटायर लाइफ जो है वो कारगी नैनो में बिताती हैं, कसोली में, ठीक है. जबकि वो पहले शादी से पहले वो कहाँ रहती थी, वो कश्मीर में रहती थी, ठीक है. और शादी के बाद वो कसौली आई और वो रिटायर हो गई और फिर वो हर्मिट वाली लाइफ जीने लग गई. हर्मिट मतलब पंडित वाली लाइफ जीने लग गई, ठीक है. और उनके जब शादी से पहले उनके फादर ने उनको एक हिमालयन बियर गिफ्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा छोटा था. और नंदा कौल जो थी वो एनिमल लवर भी थी, ठीक है, और उनको बहुत अच्छा लगता था मंकीज़, पैरट्स, ठीक है. उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी, बहुत कंफर्टेबल थी वो, और उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. उनके हस्बैंड जो थे वो वाइस चांसलर थे और वो नंदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है. और उनको नंदा को किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, ठीक है. और उनके घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हुआ करते थे, ठीक है. नंदा की पूरी लाइफ जो थी वो बच्चों में ही गुजर जाती है, क्योंकि एज़ वी नो व्हेन वी मैरी, ठीक है, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ठीक उसी तरीके से नंदा की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही बिता दी, ठीक है. और अब उनको अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए था, तो वो कहाँ चली जाती हैं, कसोली में, ठीक है, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए. सो नेक्स्ट जो है द अराइवल ऑफ राका विद हर ग्रैंड मदर नंदा कौल. वन डे नंदा कौल रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर डॉटर आशा इन्फॉर्मिंग दैट शी वॉज सेंडिंग हर डॉटर Raka to live with her under compelling circumstances. The old lady could not say no to the request of her daughter Asha, because she had no other alternative. Her daughter Tara was going to Geneva to improve her relation with her husband Rakesh, so she could not take Raka with her, who was not well at that time. Asha herself was going to Mumbai for an important work. Nanda Kaul had difficulties when he unwillingly kept Raka in her house, whose face was not round like moon. Then she did not know how she should rear that little girl, so she consulted her servant Ramlal, but he also had no idea about it. Then he said
Then he said that he would make potato chips for Raka. Nandakol could not imagine from where she should get toys for Raka, and who was also to be fed, looked after, and sent to bed. Nandakol had many duties to do along. She was fascinated by different aspect of nature. The girl was truly a child of nature, so she made her absence from her house suddenly and silently without troubling grandmother, because Raka was altogether different child without any interest in human society. अब यहाँ पे क्या होता है, राका का अराइवल होता है, ठीक है, किसके घर में, नंदा के घर में। अब एक दिन क्या होता है, नंदा को उनकी डॉटर आशा फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी राका को आपके पास भेज रही हूँ, ठीक है, और आपको उसको संभालना होगा क्योंकि मुझे मुंबई में बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। लेकिन जो नंदा होती है वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों में ही गुजारी है और अब वो नहीं चाहती थी कि अब वो फिर से किसी बच्चे को ख्याल रखे किसी का, ठीक है। तो फिर नंदा को बहुत जैसे ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, राका को रखना, ठीक है, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो मून की तरह होता है, ठीक है, और उसको पसंद नहीं आता है। तो जो नंदा होती है वो अपने सर्वेंट रामलाल की हेल्प लेती है और वो उससे कहती है कि तुम उसके लिए पोटैटो चिप्स बनाओ, ठीक है। तो रामलाल कहता है कि ठीक है, मैं उसके लिए चिप्स बना दूंगा, पोटैटो चिप्स बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंदा को बहुत मतलब अनकंफर्टेबल लगता है, वो सोचती है कि वो क्या खाएगी, कैसे बेड पे जाएगी, ठीक है, और मतलब उसको मैं टॉयज़ कहाँ से ला के दूँ। अब नंदा को सिर्फ राका को ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं कुछ, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये होती है इनकी बेटी, जो इनकी ग्रैंड डॉटर है राका, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रू चाइल्ड ऑफ नेचर हुआ करती हैं, ठीक है। राका जो होती है वो मतलब चुप्पे से बाहर चली जाती है बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ठीक है, क्योंकि उसको नेचर इतना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी ह्यूमन सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, उसको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और सेम नेचर नंदा का भी था, लेकिन जब ये राका इनके पास आती है तब उनको समझ नहीं आता कि ये कैसी हैं कैसी नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाते, ठीक है। इट सीम्स लाइक वो एक स्वीट टॉकर है, ठीक है, पर बाद में हमें धीरे धीरे पता चलता है उसका नेचर क्या है। तो अब है राका लव फॉर नेचर एंड एनिमल्स, ठीक है। राका हैड डीप लव फॉर नेचर इंक्लूडिंग द हिल्स अराउंड. शी watched the storm rising and spreading up to the Monkey Point, and she was enjoyed the flow of the shining river water. She also liked the lake of Chandigarh. Raka had deep love for animal also. She felt gentle and delicate emotions in her heart after seeing the animals. Ramlal picked up a stone, threw at the monkey mother, but Raka stopped him from doing so. Nanda Kaul was much surprised to know about the delicate emotions of Raka for the birds. Her grandmother was impressed to note a new image of Raka, finding her different girl from others. She found her genius having some greatness of her grandmother in her character. She said to her, Raka, you are a great grandchild of mine, aren't you? You are like me than any of my children or grandchildren. You are exactly like me. Raka. But in fact, Raka was ahead of her because she did not show any interest in life. Nanda Kaul retired in old age, but Raka had become hermit-like in her childhood. The grandmother tried to make her like other children, but with no result. The grandmother asked Raka if she would go to a boarding school at Sanavar, but the little girl refused because she found the nature far better, which could teach her more than a school teacher. Nanda Kaul wished to make a will, but she could not find a worthy lawyer. She did not like to be left alone, but Raka was closely related to her. In the beginning, Nanda Kaul had accepted Raka unwillingly, but then she was unwilling to let her go away.
तो यहाँ पे राका की बात की गई है, ठीक है, कि उसको नेचर से इतना ज़्यादा प्यार था, ठीक है। उसको स्टॉर्म देखना बहुत अच्छा लगता था, उसको रिवर देखना बहुत अच्छा लगता था, उसको चंडीगढ़ का लेक खास करके बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और एनिमल लवर वो कैसे थी कि वैसे तो वो एनिमल से इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई भी इंसान आके मारे। लेकिन एक दिन जब रामलाल जो है वो उस बंदर को पत्थर मारता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, ठीक है, और वो रामलाल को रोकती है। और ये देखकर नंदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है राका से, और उसको ऐसा लगता है कि वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है, ठीक है, और वो एकदम मेरी तरह है, ठीक है। और फिर ये वो जो नंदा होती है वो सोचती है मैंने तो अपनी शादी के बाद अपनी ये हर्मिट वाली लाइफ जी है, लेकिन राका ने तो अपने चाइल्डहुड में ही मुझे लगता है ये हर्मिट वाली लाइफ जी रही है, ठीक है। तो अब जो नंदा होती है वो बहुत ज़्यादा वरिड होती है इसके फ्यूचर के लिए, तो वो सोचती है कि क्यों ना राका को हम एक बोर्डिंग स्कूल में भेजें, लेकिन राका जो होती है वो मना कर देती है, ठीक है, सनावर स्कूल में जाने के लिए वो मना कर देती है। और वो कहती है कि नेचर जो है वो मुझे बहुत कुछ सिखा सकता है जो कि एक स्कूल टीचर नहीं सिखा सकती, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि जो नंदा होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि राका आ रही है। हाँ, थोड़ी बहुत खुशी होती है कि बच्चा आ रहा है घर में, लेकिन उसने अपनी पूरी लाइफ ही बच्चों में गुजारी थी, तो अब वो नहीं चाहती थी कि वो आए। लेकिन जब उसने ये सब उसके इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ देखी तो वो चाहती थी कि राका उसको कभी भी छोड़ के ना जाए, वो हमेशा उसके साथ रहे। So next है हमारा मीटिंग विद इला दास। द थर्ड पार्ट ऑफ द नॉवल शोज द लाइफ ऑफ इला दास who had been with Nanda Kaul in school and college. Ila said to Raka, I have known your grandmother for how many years it is now? Well, I'm not going to bore you by counting them. I'm really sure I can count them, but when once known anyone that long, you know one is practically related. Nanda Kaul also recollected that she and Ila Das had played together as children with children games. They went to school together. It is necessary to mention that Ila Das was an unfortunate child and she was short in size. When she sat on the small chair of Raka, her feet hung into the air and her head was also turned and her voice was horrible like a tomcat. Her gait was also strange and it looked odd to others. She felt unhappy when others taunted at her. In the classroom, the teacher did not like her to hear voice when she liked to sing a poem. तो मीटिंग विद इला दास। तो अब नंदा जो होती है, नंदा और राका ये इला दास से मिलती हैं। नंदा तो पहले ही इला को बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि इला जो है ये इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है। और इला राका से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने सालों से तुम्हारी ग्रैंड मदर को जानती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और वो कहती है कि फिर मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। और फिर वो बताती है कि हम लोग साथ में स्कूल गए, हम लोगों ने गेम्स खेली हैं, ठीक है। और फिर इला दास अपने बारे में बताती है कि उसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी थी, ठीक है, और उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल होती है, और ठीक है, हॉरिबल है, और उसकी आवाज़ को कोई भी पसंद नहीं करता था, बल्कि उसको टीचर्स भी बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते थे। Careless brothers. She was not only deformed, but her life was also shapeless by her cruel fate. She was born in a rich family having 5